डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स applied to an inductor। ठीक है, इंडक्टर तो आप जानते ही हो, कॉइल होती है इस फॉर्म में। अगर ये प्योर इंडक्टर हो तो इसकी कोई रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं, आर इज जीरो इफ इट इज प्योर। लेकिन जनरली प्योर नहीं होता, कुछ रेजिस्टेंस आती है। लेकिन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई टू एन इंडक्टर, वी मीन इट इज प्योर इंडक्टर, दैट इज इट हैज नो रेजिस्टेंस। ओके, ऑल्सो आपको पता है व्हेन वी अप्लाई द करंट टू इट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज समझो एक बैक ईएमएफ। अगर हमने इस डायरेक्शन में ईएमएफ लगा दिया सोर्स, तो अपोजिट में एक और अपोजिंग ईएमएफ पैदा होता है, ई एल, दैट इज माइनस डी आई एल डी आई बाई डी टी। ये पैदा होता है, यानी करंट अगर यहाँ से आ रहा है उसके अपोजिट में करंट आती है, जिसकी वजह से ये ईएमएफ पैदा होता है जो इस ईएमएफ को अपोज करता है। चाहे भले इस साइड में करंट आए, इस साइड में, ये हमेशा अपोज करता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता है, यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग। नाउ लेट अस सपोज दैट वी हैव एन इंडक्टर having self inductance or quotient of inductance L, to which an AC source is applied. Okay, now this AC source, voltage source, V, let it be V, that's its instantaneous value, is equal to Vm sine omega t, where omega is its frequency, constant frequency, and Vm is its amplitude or the maximum value. ठीक है, number one. Now as we apply the EMF, current is also produced. Now you know that in AC alternating voltage फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव होता है, सेकंड हाफ में नेगेटिव। तो यहाँ जब सोर्स होता है, करंट पहले इस डायरेक्शन में जाएगी और फिर इस डायरेक्शन में। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव अ पॉजिटिव हाफ ऑफ द वोल्टेज। ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ में तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव में तो इस डायरेक्शन में जाएगी। नेगेटिव हाफ में हम लेते हैं एट एनी इंस्टेंट, this is positive, this is negative, so current will flow in this direction. So this inductor will oppose the increase in current and produce an induced EMF in the direction L, in the direction opposite to the applied EMF or this voltage source. So it will produce L di by dt. This sign is due to Lenz's law. If we apply Kirchhoff's law to this, when the current is going in, let us say in this direction, then we have V, that is the instantaneous voltage. ठीक, we go from negative to positive, so it is to be taken positive. But ये क्या है, नेगेटिव इस डायरेक्शन, so we go from positive to negative इस डायरेक्शन में, so it will be minus V L. L is the EMF developed in this coil opposing back EMF. Okay, since there is no resistance in the circuit, so this is equal to 0. ठीक है, so minus L di by dt, so VL is L di by dt, so we can write V minus, or we can simply write it as plus, तो फिर हम माइनस यहाँ पर दे देंगे, माइनस L di by dt. ठीक है, which is equal to 0, or V is equal to L di by dt. Now we substitute the value of this V, so V will be Vm sine omega t is equal to L di by dt. इस L को इस डायरेक्शन में लेंगे क्रॉस में, और dt को भी इस डायरेक्शन, सो Vm by L sine omega t dt is equal to di. Now we have the relation for the voltage, now we want to derive the relation for the current. So di, so we will take it on this side, इस साइड में लिखेंगे di, इसको यहाँ से मैं लिखता हूँ इस डायरेक्शन, ये di. So we will integrate to get the total current. So integral di is equal to integral Vm by L sine omega t dt. ठीक, now what is Vm? Vm is the peak value or the maximum value of the voltage, that is this. Okay, so it is constant, and L
L is the inductance of this mutual quotient of mutual inductance, quotient of self inductance. So it is also constant, can be taken out of the integral. So this d and I will cancel, d and integral will cancel. So I will be equal to Vm by L integral sin omega t dt. ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए, तो इसको मैं रब करता हूँ अब। तो इसकी I will be equal to Vm by L integration of sine, that is minus cos, differentiation of cos is minus, integration of sine is minus, ठीक है। So it will be minus cos of omega t divided by this इंटरनल जो एंगल है that is omega, इसको डिवाइड करना है, ठीक। और I is equal to Vm by L। अब जो cos माइनस ओमेगा टी, इसको इन टर्म्स ऑफ साइन लाने के लिए इसको मैं इन टर्म्स ऑफ साइन लिखूंगा। इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉस, ये ओमेगा एल ओमेगा यहाँ लिखेंगे, तो इट ये माइनस कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना, नेगेटिव नहीं रखना है। सो दिस माइनस पाई बाई टू, अगर इसको फिर से फार्मूला लगेंगे, ये फार्मूला है साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू, दैट इज माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये तो आप जानते हो, ये फार्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई की, तो इसको मिटा देते हैं। नाउ Vm इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, सो दिस होल थिंग इज कांस्टेंट। नाउ हमने इससे पहले जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने किया था, उसमें क्या लिखा था, मैं आई एम पीक वैल्यू ऑफ द करंट, रेजिस्टिव सर्किट में लिखा था दैट वाज Vm by R। तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इसको अगर हम करेंगे, तो जो एल ओमेगा है ये रेजिस्टेंस वही काम करता है जो रेजिस्टेंस करती है, एल ओमेगा रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव सर्किट में एल ओमेगा वही काम करता है जो प्योर रेजिस्टिव जिस सर्किट में रेजिस्टेंस काम करती है, ठीक है ना। दैट इज इट अपोजेस द करंट, इट अपोजेस द करंट। जब करंट आती है तो उसको ये अपोज करता है जैसे रेजिस्टेंस अपोज करती है करंट को। सो दिस Vm by L omega can be written as I am here, the peak value in the inductive circuit. So I is equal to I am sin omega t minus pi by 2. This is equation number 2. Now if we compare, we see V यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यहाँ पर भी करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यहाँ पर भी इसका पीक वैल्यू, यहाँ भी करंट का पीक वैल्यू, लेकिन इसमें फर्क है, यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा माइनस टी, यानी इससे कम 90। अगर मिसाल के तौर पर 100 मिसाल 180 है, तो अगर ये एंगल 180 है, यानी जो वोल्टेज का एंगल है 180 है, तो इसका करंट का एंगल 90 होगा, क्योंकि वो 90 पीछे चल रही है, ठीक है ना। सो इट मीन्स दैट करंट इज लैगिंग, यानी पीछे जा रही है वोल्टेज के बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। सो in inductive circuit, pure inductive circuit, CKT short में circuit, current lags voltage by an angle 90 degree or pi by 2, ठीक है। So in a purely inductive circuit, current lags behind the voltage by an angle of pi by 2, or voltage leads current by angle of pi by 2, दोनों सही है, ठीक है ना। अब इसको रब कर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट, नाउ अब इस क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, दैट इज आई एम is equal to Vm by L omega. Now the quantity L omega is written as XL, then Im will be equal to Vm by XL, ठीक है। This XL is called inductive reactance. It plays the same role as is played by the resistance in the purely resistive circuit, okay. Also it has the same units and dimensions
ऑफ रेजिस्टेंस, ये याद रखो। इसकी वही यूनिट्स होते हैं, यानी ओहम यूनिट होता है एसआई यूनिट, और डायमेंशंस रेजिस्टेंस की होती है। दूसरी बात, इसमें से हमें क्या पता चलता है, XL द इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट लिमिट्स द करंट, इसका काम क्या है कि करंट को लिमिट करता है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। नाउ omega is the angular frequency, or it can be written as 2 pi f, the linear frequency. Now greater the frequency, more will be the inductive reactance, more will be the resistance offered to the more will be the capacity of this to limit the current. Now for DC F इज इक्वल टू जीरो, डीसी की जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये जीरो होती है। दैट मीन्स XL फॉर दैट इंडक्टिव रिएक्शन जीरो। सो एन इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी resistance to the flow of DC. DC easily passes through it. But for AC has frequency. So चूंकि AC में जीरो फ्रीक्वेंसी नहीं, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ज़्यादा या कम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू AC, ठीक। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस L है वो ये DC के लिए जीरो है, लेकिन AC के लिए इट इज नॉट, XL इज नॉट, AC के लिए XL इज नॉट जीरो, ठीक है ना, इट इज नॉट जीरो, इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस टू इट। ओके, यहां तक हो गया ये। अब हम यहां पर हमने देखा कि ये जो करंट और वोल्टेज लैग कर रही है, इसको हम फेजर में कैसे दिखाएंगे, फेजर डायग्राम। अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा जो वोल्टेज थी इंडक्टिव रिएक्टेंस प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, तो वो क्या थी, Vm साइन ओमेगा टी, और आई क्या निकली हमें, आई नॉट या आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका जो फेजर होगा, आगे होगा 90 डिग्री इससे, या ये पीछे होगा 90 डिग्री इससे। तो कैसे दिखाएंगे, लेट अस सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट, ये आपकी वोल्टेज का फेजर है OA, ये क्या देता है आपको, V वेक्टर, ठीक है ना। इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो देगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज Vm साइन ओमेगा, दैट इज से दिस इज एट ओमेगा T1, उस वक्त टाइम T1 है, तो ये साइन ओमेगा T, Vm साइन ओमेगा T1, यानी ये एंगल है थीटा 1। अब जो करंट है, करंट लैग कर रही है कितना, 90, तो ये यहाँ से 90 ऐसे, ये समझो ये करंट है। करंट क्योंकि कम होगी, क्यों कम होगी, उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका काम क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जो करंट है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है वो Vm/XL है। XL का कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, तो Vm के वैल्यू को डिवाइड करेगा तो काम होगा, तो इसलिए मैंने इसका छोटा एरो दिखाया है, ठीक। ये आपका हो गया OB, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक, इनके दरमियान। ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, दैट इज वोल्टेज लीड्स करंट बाय एन एंगल ऑफ 90, और दिस करंट लैग्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90। ये ऐसे भी है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं करंट, ये आपकी करंट अगर आई है इस डायरेक्शन में और वोल्टेज इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल इनके दरमियान 90, देखिए ये 0 पर है, ये 90 पे है, ठीक। अब इसका वेव डायग्राम, यानी जो वेव जनरेशन कैसे होगी, कल मैंने आपको दिखाया था पिछले लेक्चर में कैसे जनरेट होगी, आज थोड़ा सा आसानी और दिखाएंगे ये कैसे जनरेट होगी। ओके, दूसरी बात, पहले ये वेव डायग्राम्स बनाने से पहले हमने देखा जो लैग कर, ना अभी आपने देखा जो करंट लैग करी है बाय एंगल π/2, π/2 मीन्स टाइम पीरियड कितना होता है, अगर पूरे साइड वेव का लेंगे तो देखिए, अगर पूरे वेव का लेंगे तो टोटल एंगल क्या होता है, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 3π/2, एंड दिस इज 2π। तो चूंकि π/2 से वेरी कर रही है, तो यहाँ तक पूरा हो गया हमारा टाइम पीरियड, तो ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है ना। तो ये अगर टाइम डिफरेंस होगी दैट इज T4, टाइम अगर टाइम पीरियड में डिफरेंस लेंगे तो T4 की डिफरेंस होती है। नाउ वी नो दैट T किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है 2π/T, ठीक है, और T किसके बराबर होगा, 2π/ओमेगा। तो इसको अगर ओमेगा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, T के बदले में क्या लिखे, 2π/ओमेगा और डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी π/2 ओमेगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी इनकी फेज डिफरेंस, ये हुआ टाइम की डिफरेंस, ठीक है ना, एंगुलर डिफरेंस या फेज डिफरेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं।
यहां तक हो गया। अब हम बनाएंगे इसकी वेव डायग्राम। देखिए, ये आपका यहां से ओमेगा टी, ये एक्सिस, ये आपकी ये होगी आपकी यहां से आपका वोल्टेज या करंट, ठीक है ना, और करंट भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव ये हो गया ऑरिजिन, नेगेटिव इस डायरेक्शन, पॉजिटिव इस डायरेक्शन। तो हमें वोल्टेज स्टार्ट होती है, अगर जीरो से हम स्टार्ट कर लेंगे वोल्टेज यहाँ, तो यहाँ से मैक्सिमम, सॉरी, तो यहाँ से मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद मिनिमम, मिनिमम के बाद नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम। तो एंगल यहाँ पर कितना हो गया 2 पाई, ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया आपका पाई, दैट दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज 0। ये हो गई वोल्टेज। ये जो कर्व रिप्रेजेंट करता है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब करंट क्या है, ये तो हमने जीरो से, वो करंट क्या है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अगर ये जीरो, हमें 90 पीछे लेना है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा ऐसे, क्योंकि करंट का वैल्यू कम होगा इसलिए इसको मैं थोड़ा ऐसे करूंगा, ठीक है। अब देखिए, करंट कहाँ से स्टार्ट होगी 90 से, मगर प्लस 90 नहीं, माइनस 90 यहाँ से। तो अब यहाँ आएगा उसका यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम, इसका आएगा मिनिमम, मिनिमम के बाद क्या आएगा, अब इस करंट का आएगा मैक्सिमम, ऐसे, ठीक है। अब मैक्सिमम आ गई करंट, अब इसको क्या जाना है मिनिमम पे, यहाँ गई मिनिमम पे, मिनिमम पे अब क्या जाएगी अब जाएगी नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम में, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके बाद ये फिर से इस डायरेक्शन में मैक्सिमम को जाएगी, ठीक है। ये जाएगी मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, ये आ गई मैक्स, ये मिनिमम मैक्सिमम, ठीक। तो अब ये ऐसे मिनिमम पे जाएगी यहाँ, ठीक है। देखिए, ये इनमें फर्क है, ये ग्राफ है इसका, ये क्या है आपकी करंट, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको मैं पूरा डॉटेड नहीं बनाता हूं, ठीक है। करंट को मैंने जो पीक है कम रखी, वो मैंने बताया आपको रीजन क्यों कम रखी है। तो ये उनका ग्राफ है, देखिए, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका मिनिमम वोल्टेज का, करंट का मैक्सिमम, इसका मिनिमम करंट का, इसका नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका नेगेटिव साइड में मैक्सिमम करंट का, ठीक है ना। रेड से हमने करंट दिखाई। तो ये है इसका ये जो वेव ग्राफ है, ठीक है ना। अब उसके बाद है नाउ द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द इंडक्टर, जो हमने इंडक्टर प्योरली इंडक्टिव सर्किट लगाया था, उसमें इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PL। Now we know that power is product of ये instantaneous power है, ठीक। यानी at any time power क्या होगा उसमें, that is product of voltage, instantaneous voltage and product of instantaneous current। तो वो हमने देखा, वोल्टेज क्या दी थी हमने एसी सोर्स की, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक। और करंट क्या थी, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये कांस्टेंट है, Vm इंटू Im साइन ओमेगा टी, ये हमें पता है साइन थीटा माइनस पाई बाई 2, दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी। ये हमने पहले उसको कन्वर्ट किया था इसमें, तो माइनस कॉमन निकलेगा यहाँ माइनस, और इसको मैं 2 से डिवाइड भी करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, Vm Im ट्वाइस, ये मैंने 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी किया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। नाउ आपको पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
ठीक है ना। देखिए थीटा ये यहाँ थीटा, ये भी थीटा, 2 फार्मूला आया, ठीक। तो इसको मैं 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा लिखूंगा। सो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी -1/2 Vm Im साइन ऑफ, इसके बदले में साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ठीक। नाउ एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज पावर कैसे लिखते हैं हम, इसको ऐसे बनाते हैं, ये कभी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिखाया होता है, तो मैं इसको इंटीग्रल में भी सॉल्व करूंगा। PL इज इक्वल टू ये सारे का एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल, पूरे वन साइकिल, एवरेज AVG ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस इसका एवरेज Vm Im साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये आपने इससे पहले लेक्चर में किया है। देखिए -1/2, चूंकि इसी एवरेज ने, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये बाहर आएगा, एवरेज से बाहर आएगा, तो बचा क्या, साइन 2 ओमेगा टी, इसकी एवरेज निकालनी है। तो ये आपको पता है, एवरेज ऑफ दिस साइन 2 ओमेगा टी इज 0 ओवर कंप्लीट साइकिल। तो अगर आपका ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सीधे इसको 0 लिख सकते हो और आप करोगे एवरेज पावर इन एन इंडक्टर सर्किट इज 0, और एवरेज पावर डिसिपेटेड इन एन इंडक्टिव सर्किट इज 0, दैट इज नो पावर इज डिसिपेटेड इन एन इंडक्टिव सर्किट, ठीक है ना। तो वैसे करोगे आप, लेकिन अगर आपको पूरा इसको करना है तो मैं वो दिखाऊंगा यहाँ पर, और ठीक है ना। तो यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं इस इक्वेशन से आगे चलूंगा, नीचे वाली। सो तो एवरेज पावर, या हम इसको P बार भी लिखेंगे, ठीक। क्या थी इक्वेशन, -1/2 Vm Im साइन 2 ओमेगा टी। मैंने कहा कि 0 निकलेगा, तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक। ये पता होना चाहिए ना डायरेक्टली, ये 0 है इसका एवरेज साइन 2 ओमेगा टी का, यानी 2 थीटा का एवरेज 0 है साइन 2 थीटा का। सो -1/2, ठीक है। तो दिस इज रिटन एज, देखिए एवरेज ओवर साइकिल दैट इज 1/t इंटीग्रल 0 टू t, ये ठीक है ना, ये मैं लिखूंगा इस फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी dt, ठीक है। नाउ -1/2 Vm Im इंटू 1/t। नाउ साइन की इंटीग्रेशन अभी मैं बताई कॉस, ठीक है ना, मगर माइनस, सो इट विल बी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बिटवीन द लिमिट्स, ऐसे बिटवीन द लिमिट्स ओमेगा 2 ओमेगा, क्योंकि ये है इसके साथ कोऑफिशिएंट, ठीक है ना। नाउ इस 2 ओमेगा को बाहर निकालेंगे, ये बनेगा आपका -1/2 और -2 टू 4 ओमेगा टी Vm Im। अब माइनस को भी बाहर निकालो तो ये प्लस बनेगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसको cos t, ठीक है, cos 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। बाकी हमने सारा बाहर निकाला, अब 0 टू t, ठीक है ना। पहले अपर लिमिट देंगे इसको, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो दिस विल बी 1/4 ओमेगा टी Vm Im। तो अपर लिमिट जब लेंगे cos t के बदले में क्या लिखेंगे, ये कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड, और 2 ओमेगा हमें पता ही होता है 2π/t, और इस t के बदले में ये, ठीक, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, इस t को 0 देना है, बाकी हमें कुछ करना नहीं, दैट इज cos ऑफ 0, ठीक है। दिस t एंड दिस t विल कैंसल, सो इट विल बी 1/4πt Vm Im cos 2 to the 4, 4π minus cos 0. Now cos 4π is 1 and cos 0 is also 1. That is, ये क्या हो गया, 1 minus 1. So that will be equal to 0. So average power dissipated in a purely inductive inductive circuit is 0. क्योंकि ये सारा जो आपको ये 0 बनेगा, it will be 0. ठीक है ना। अब ये फिजिकली मतलब होता क्या है, एवरेज पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट 0, वो अभी मैं इसके बाद करूँगा। आप इसका ये ले लो स्क्रीनशॉट। अगर हम यहाँ पर ग्राफ लेंगे, देखिए अगर वोल्टेज में यहाँ लेता हूँ π/2, तो करंट का होगी यहाँ 0, क्योंकि लैग। तो अगर मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर, ये आपकी वोल्टेज है, मैक्सिमम मैंने π/2 से मैंने लिया, और करंट को लूँगा 0 से, तो ये आ गई यहाँ। पहले इसको मैं 4 हिस्से करता हूँ ताकि ये सही बन जाए।
ओहो भाई क्या होगा। देखिए पहले मैं यहाँ देता हूँ, देखो ये हमारा जो एसी साइकिल कहाँ होता है, 0, फिर π/2, फिर 2π यानी पाई, 3π/2, यहाँ मैंने फेज एंगल लिखे और 2π, ठीक है ना। इफ इट इज 0 यहाँ हम 90 लेंगे, ठीक है ना। तो वोल्टेज हम 90 से स्टार्ट करेंगे ऐसे, यानी करंट अगर ये है 0 से स्टार्ट हो रही है और ये आपकी वोल्टेज 90 से, तो ऊपर से मैं ले रहा हूँ वोल्टेज, तो मैं बनाऊंगा ब्लैक से। तो उसका मैक्सिमम आ गया यहाँ, फिर मिनिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम पे आ गई, फिर यहाँ पर जाएगी मैक्सिमम पर, उसके बाद जाएगी मिनिमम पर, मिनिमम के बाद यहाँ इसकी डायरेक्ट दूंगा मैं पूरा, ये हो गया मैक्सिमम पर, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अब ये क्या है आपकी वोल्टेज V, ठीक है ना, इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। अब हम लेंगे करंट, करंट कहां से, 0 स्टार्ट हो, क्योंकि हमने वोल्टेज को 90 से दिखाया, तो ये क्या जाएगी, तो ये मिनिमम, मिनिमम से क्या जाएगी, ये मैक्सिमम पर। लेकिन चूंकि करंट का वैल्यू कम होता है तो उसको मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो करंट कहां से जाएगी, मिनिमम से मैक्सिमम पर, मैक्सिमम से मिनिमम पर, मिनिमम से अब मैक्सिमम पर, और मैक्सिमम से मिनिमम पर। ये आपकी क्या है, I इज इक्वल टू आई एम या I0 या जो भी m लिखो, मैंने m लिखा है तो m ही लिखेंगे, आई एम साइन ओमेगा t माइनस π/2, ठीक है ना। अब देखिए पावर किसके बराबर होता है, पावर इंस्टेंटेनियस कोई, इट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना। अब देखिए बिटवीन 0 एंड π/2 करंट क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक, और वोल्टेज डिक्रीज होती है। लेकिन अगर करंट डिक्रीज होती है वोल्टेज भी डिक्रीज, लेकिन दोनों क्या है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं है, तो प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, फर्स्ट कॉल 0 to π/2, 0 to π/2 प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी पॉजिटिव, हेंस पावर कंज्यूम्ड विल बी पॉजिटिव, सो पावर विल बी एब्सॉर्ब्ड हियर, ये पावर आ गया ऐसे। तो यहां पावर जो है वो जो इंडक्टिव सर्किट है एब्सॉर्ब करेगा यहां। फ्लक्स क्या होगा, चूंकि करंट इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा यहां तक, ठीक है, फ्लक्स की बात। सो एज करंट इंक्रीजेस फ्लक्स, करंट इंक्रीज फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस, ये जो पावर एब्सॉर्ब हो गया, दैट मींस इट इज स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब करंट पास होती है किसी से तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इंडक्टर स्टोर्स इट्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अब इस क्वाड्रेंट यानी π/2 टू इसमें π/2 टू पाई, अब देखिए ये वाला, ठीक, देखो करंट डिक्रीज, वो करंट डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज नेगेटिव नीचे वाले क्वाड्रेंट में, ठीक, तो ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है क्योंकि एक्सिस के नीचे है, तो ये नेगेटिव है बट करंट इज पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका, नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगा, पावर भी होगा आपका नेगेटिव, सो पावर एब्सॉर्ब विल बी नेगेटिव, दैट मींस दैट इज पावर विल बी रिटर्न बैक, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में। ये हो गया आपका इसमें नेगेटिव पावर, ठीक। अब आएंगे हम पाई से 3π/2, पाई टू 3π/2। अब देखिए यहां पर करंट भी डिक्रीज हो रही है यानी नेगेटिव, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोनों का, लेकिन नेगेटिव एक्सिस के नीचे ये भी नेगेटिव है, हालांकि इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव बिकॉज बोथ आर नेगेटिव क्वाड्रेंट, सो पावर विल बी पॉजिटिव, हेंस पावर प्रोडक्ट PV into I will be positive, so power will be absorbed again here, so it will write as plus, ठीक है ना। अब आएंगे हम 3π/2 से 2π तक, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए जो करंट है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, यानी उसका वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव, अपर वाले क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रही है, सो व्हाट विल बी प्रोडक्ट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, अगेन द पावर विल बी रिटर्न बैक, सो पावर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पावर विल बी नेगेटिव, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो यहां पर एब्जॉर्ब किया तो जो कॉइल है वो मैग्नेटाइज हो गई, ठीक, तो उसने एनर्जी कहां स्टोर की, अपने मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पर क्या किया उसने, रिटर्न बैक
तो जैसे करंट डिक्रीज होने लगी वो एनर्जी रिलीज करता है बैक जो मैग्नेटिक स्टोर होती है उसमें मैग्नेटिक एनर्जी वो रिलीज करता है। ठीक, फ्लक्स की क्या होती है, देखो यहां जब देखो फ्लक्स के बारे में, यहां करंट डिक्रीज हो रही है क्योंकि रेड से मैंने करंट, तो फ्लक्स भी डिक्रीज होकर मिनिमम पे आएगा। ठीक, सो जब फ्लक्स डिक्रीज होगा करंट डिक्रीज होगी लेकिन अभी भी पॉजिटिव होगी। ठीक, तो करंट फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। ठीक, इस क्वाड्रेंट में फ्लक्स डिक्रीज होगा लेकिन पॉजिटिव ही होगा। ठीक, तो इसका मतलब है यहां पावर नेगेटिव है। अब यहां पर इस डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन, सो करंट यानी जो एसी का नेगेटिव साइकिल है उसमें क्या करेगी, ये फिर से फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फ्लक्स विल इंक्रीज। यहां फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिज्म विल बी मोर, सो इट विल बी पावर विल बी अब्सॉर्ब। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम से फिर कम हो क्योंकि करंट डिक्रीज हो रही है, फिर कम 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 जीरो पे आ, यानी फ्लक्स यहां डाउन होगा, इट मींस पावर विल बी return back to the return back to the source that here because phi is decreasing। ठीक है ना, तो हमने देखा ओवरऑल इसमें जो पावर है वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब। ठीक, यहां पर क्या होता है, यहां पर रिटर्न बैक होता है। ठीक, इस क्वाड्रेंट में रिटर्न बैक होता है, इसमें एब्जॉर्ब, यहाँ पर फिर से एब्जॉर्ब पावर होता है क्योंकि करंट और ये दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और इस क्वाड्रेंट में फिर से रिटर्न बैक। तो एब्जॉर्ब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, रिटर्न बैक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो पूरे साइकिल में 2 बार एब्जॉर्ब करता है और 2 बार रिटर्न करता है। तो ओवरऑल जो पूरे इस साइकिल में जो पावर कंज्यूम्ड है और डिसिपेटेड है, दैट इज एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। ठीक है।